Done? Okay. So good morning to all my dear students of class 11 science. As you know that today the live streaming class was not possible on YouTube because there was a net connectivity issue. So today I am here to upload the today's topic. Okay, I am going to make one video and that video I will upload on YouTube. So your class will not be affected. You are able to see the topic and whatever the queries or whatever the doubts will come, that either in tomorrow live streaming classes we will discuss or in your group. Today you can send your doubts in your message wise and then I will clear all those doubts. Okay, so all my dear students, yesterday we discussed about the spectrum. As we know that I already sent one notes regarding the emission absorption spectrum, and now here as you can see we are going to discuss about the hydrogen spectrum in a proper way, and moreover today we will also discuss the numerical based on that, which is very much important. And after the discussion of the hydrogen spectrum, after that we will discuss the Bohr's atomic model, which will play a very much important role to move forward in the modern structure of the atom or the modern concept of the structure of the atom. So now here we are going to discuss about the hydrogen spectrum. One more name we can write like this: emission spectrum of hydrogen atom. It is a type of the emission spectrum. Already I told you because hydrogen atom having only one electron and their outermost shell, so easily it can lose. So which type of the spectrum it will show? It will show about the emission spectrum. Okay, so if you remember that what I told you, whenever you will discuss about the hydrogen spectrum and then whatever the spectral lines will form. If you remember that yesterday I discussed with you the spectrum whenever will form, either it will form in a form of the line, you will get the spectrum in a form of the line, so it is called the line spectrum, or you will get the spectrum in a form of the band, so it is called as the band spectrum. And both are possible, either in the emission spectrum or the absorption spectrum. Okay, so now this spectrum line, what we discussed yesterday, this we can divide into the 5 series. Okay, this spectrum can be divided into the 5 series. And what are the 5 series? Those are Lyman series, then Balmer series, Bastian series, Brackett series, and the last one is P1 series. Okay, so we can get the hydrogen spectral line into this 5 series. तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिला वो ये 5 सीरीज से मिलकर यहाँ पे 5 सीरीज मिली, जो लाइंस मिली, जो स्पेक्ट्रम मिला उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस डिटेल व्हाट इज दिस. ओके, जस्ट अ मिनट हियर. Okay, so now I am here to discuss about this spectrum. If you remember that yesterday one more thing I discussed with you, कि in the modern term the spectrum is also called as the radiation. जो रेडिएशन आएगा, जो एनर्जी रेडिएट हुई, वो इमिटेड हुई है, एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो? क्वांटम थ्योरी. आप क्वांटा पढ़ रहे हो, वेव नेचर को लेके चल रहे हो. हालांकि फोटोन जो है वो एक लाइट पार्टिकल के रूप में ही माना है. हम फोर्स दे रहे हैं कि जो डुअल नेचर ऑफ द लाइट है, तो उसको रिलेटेड करके यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो रेडिएशन आएगा, है ना, जो रेडिएशन आएगा तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव नेचर को सपोर्ट करे. ओके, नाउ सो यू प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन द स्पेक्ट्रम विल फॉर्म इन दिस 5 सीरीज. ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से दूसरे लेवल में एक्साइटेड करेगा, है ना, अपने एक एनर्जी लेवल से. आपने अभी तक जितना भी केमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 10 में या 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो आप क्या बोलते हो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, एंड दीस सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड एज द एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल हुए ना, तो एनर्जी लेवल का मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे बोला कि अगर साहब ये कोई न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर द एनर्जी लेवल्स आर देयर, और अगर हमारे ये एनर्जी लेवल हो गए तो मतलब क्या हुआ, स्पेक्ट्रम के हिसाब से ये क्या बता रहा है? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन
डेवलप होंगे, और वो जो रेडिएशन होंगे वो हमें किस फॉर्म में दिखेंगे, कलर के फॉर्म में, जिसको आपने बोला ये स्पेक्ट्रम है। ओके, तो अभी क्या पढ़ना है, यू प्लीज रिमेंबर दैट यस्टरडे वन मोर थिंग आई डिस्कस विद यू कि व्हेनेवर द स्पेक्ट्रम विल लाई इन अ लाइनर सीरीज, then this spectrum will form in which region? It will form in a UV region. The Balmer series spectrum will form in the visible region, and all these three, which are the Gaussian, bracket and the prefert, they will form in infrared region. Okay, ये आप कल पढ़ के भी गए। अभी और इसका डिटेल में क्या पढ़ना है कि अगर हमारा लाइनर सीरीज का स्पेक्ट्रम हुआ तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एनर्जी लेवल से जंप करेगा किसी भी दूसरे एनर्जी लेवल, मींस द वैल्यू ऑफ n1 इज द फिक्स, पहले एनर्जी लेवल पे है, उसके बाद वो एक्साइटेड होकर किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट द n2 विल बी 2 3 4 1 like that. If the spectrum will form in a Balmer series, then the value of n1 will always be 2। सेकेंड लेवल से चलना वो चालू करेगा, जो हम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ n2 विल बी 3 4 5 whatever is there। so what we can say that always n2 should be greater than n1, ठीक है ना। n2 हमेशा, ये n1 n2 क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं जहां पे रेडिएशन होगा एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो अगर स्पेक्ट्रम लाइनर सीरीज में एग्जिस्ट करता है तो जो उसका पहला एनर्जी लेवल है जो n1 है उसका वैल्यू 1 ही होगा, पहले से जंप करके किसी दूसरे में जाएगा। ओके, नाउ लाइक फॉर द पास्टल सीरीज द वैल्यू ऑफ n1 इज द 3 एंड n2 मे बी द 4 5 6 व्हाटएवर। The value of n1 will be fixed for the bracket, that is the 4, and n2 will be the 5 6 7 whatever. Like that for the prefert series, n1 will be the 5, n2 will be the 6 7 8 1. Okay, so these are the value of the energy level, n1 and n2, these are the values are there। मैं बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि साहब ये क्या है कैसे हो, तो देखो एक्चुअली है क्या, जब भी आपका स्पेक्ट्रम बनेगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब अगर मैंने बोला ये n1 है, ठीक है ना, ये मैंने 1 मान लिया n का वैल्यू, ये मैंने n का वैल्यू 2 माना, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ है, और अगर ये 5 है। ओके, सो व्हाटएवर यू कैन से इफ द स्पेक्ट्रम विल फॉर्म इन अ लाइनर सीरीज, तो उसका n1 जो होगा वो फिक्स होगा। द वैल्यू ऑफ n इज द फिक्स, मींस द फर्स्ट एनर्जी लेवल विल एग्जिस्ट इन द n1 इज इक्वल टू 1, और जैसे ही एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करेगा, तो व्हाटएवर 2 हो सकता है 3 हो सकता है व्हाटएवर इज देयर। ओके, सो दीज आर द व्हाट इज एक्चुअली स्पेक्ट्रम लाइंस, ये स्पेक्ट्रम लाइंस है, मतलब जैसे मैंने बोला 5th से 1 में आया, 5th से 2nd में गया, ठीक है ना, 5th से 3rd में गया, 5th से 4th में गया, ठीक। तो ऐसे हमारी स्पेक्ट्रम लाइंस बनती है जब स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, जब रेडिएशंस बनते हैं। तो सवाल ये बनता है कि अगर रेडिएशंस बने then how we are able to find out the energy and the wavelength, क्योंकि अगर रेडिएशन आएगा तो कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा, और अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट है तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, वेवलेंथ कैसे निकालोगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो नाउ दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो प्लीज बी वेरी मच फोकस एंड विजिलेंट बिकॉज़ दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। थ्योरेटिकल तो मैंने आपको बताया है, सारे लाइनर बार पार्शियल ब्रैकेट फंड है, एंड फॉर फोर थिंग हियर yesterday one more thing we discussed that कि जो हमारा visible region है, whatever the visible region will form, ये visible region IR region, ओके, एंड UV region के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब हमें जो भी स्पेक्ट्रम दिखते हैं, whatever we are able to see the color, अब आपने विब्योर पढ़ा, रेनबो पढ़ा, कुछ भी देखा, अगर स्पेक्ट्रम देखा है तो इसका मतलब उसका रेडिएशन विजिबल रीजन में एग्जिस्ट किया। ओके, जहां पर 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा। मतलब अगर आपका रेडिएशन हुआ और अगर उस रेडिएशन में इतना वेवलेंथ आ गया उस रेडिएशन का, सो
series. Okay, so how we are able to calculate the wavelength, frequency, energy? So that was given by the scientist Rydberg. So that's why he proposed one formula which is called as the Rydberg formula. And what is the Rydberg formula? 1 upon lambda is equal to r, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ओके, जहां पर n1 और n2 हमारे क्या हो गए, लेवल्स हो गए, किस लेवल से किस लेवल में एनर्जी का एक्साइटेशन, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, व्हाटएवर दिस, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, अभी जो r हुआ, दिस r इज कॉल्ड एज द Rydberg कांस्टेंट. This r is called as the Rydberg constant. 1 upon lambda you know very well. 1 upon lambda is called as the wave number and lambda is called as the wave length. ठीक है, तो मान लो अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? How we are able to find the frequency of that particular radiation? So nu is equal to c upon lambda. From here we will firstly calculate the lambda and then c तो we know velocity of the light और frequency भी निकाल सकते हैं. Even that अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो E is equal to h nu आप बोलते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, h c upon lambda, वहां से भी लैम्डा निकाल के वैल्यू पुट कर, क्योंकि जो भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर एक्साइटेशन हुआ तो कितना एनर्जी का चेंज आया वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. So this is the basic thing, but ultimately the thing is that कि what is the value of this Rydberg constant? Okay, so the value of 109667. This is the value of the Rydberg constant. ठीक है ना, ये Rydberg constant की वैल्यू है. अब आप देखो Rydberg अगर निकालोगे तो ये n हो गए, 1 upon lambda का मतलब 1 upon सेंटीमीटर इनवर्स निकालोगे या 1 upon मीटर इनवर्स कर सकते हो, because 3 into 10 power 8 meter per second. So this is the value of the Rydberg constant. ये Rydberg constant की वैल्यू होगी. Okay, so whenever you will put the value, you will get the result. What type of the question will come? How we will solve? Now we are going to discuss with you. I hope this formula is clear. अभी कैसे solve करते हो देखो. जैसे अच्छा हाँ, एक बात और, before solving the numerical, one more thing is very much interesting for you. एक और अच्छी चीज है, जैसे मैंने आपसे फॉर्मूला बोला 1 upon lambda is equal to r, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. If the spectrum will form under the Lyman series, I hope आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अगर Lyman series का स्पेक्ट्रम है तो n1 की वैल्यू 1 होगी, ये मतलब था Lyman series. ठीक, एंड व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ n2 वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, n2 का वैल्यू कुछ भी हो, बट इससे होगा वन मोर थिंग, n2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n1, इससे बड़ा होना चाहिए. If your spectrum will fall under the Balmer series, अब अगर हमारा स्पेक्ट्रम बाल्मर सीरीज का टाइप करता है तो इसका मतलब पहला एनर्जी लेवल कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड से, एक्साइटेशन सेकंड लेवल से स्टार्ट होगा. ओके, n2 का वैल्यू कुछ भी हो. ओके, सो लाइक दैट, फॉर एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द Appalachian series. It means that the value of n1 will be 3. अब n2 का वैल्यू कुछ भी लगाते चलेगा, ये मतलब ऐसे ब्रैकेट हो गया, ऐसे डिफरेंट सीरीज हो गया. So this is the way to calculate the particular questions for that. Okay? मैं और एक आसान सा वैल्यू बताता हूँ. आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, 1.09 into 10 to the power 5 मीटर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं. ये भी आसान सा फॉर्मूला है, because r is equal to 109667 मीटर इनवर्स, ये मतलब हुआ ना. तो उसको शॉर्ट में अपन ये भी लिख सकते हैं. Approximate calculation करने के लिए you can put the value and get the result. तो calculation आसान हो जाए. And now see what type of the question will come in this particular formula. कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो. जैसे suppose क्वेश्चन आया कि if or you find calculate wavelength of radiation when n is equal to 2 and n is equal to 3. Okay, these are the two energy levels are there. Okay, अगर यहाँ से स्पेक्ट्रम बना, अगर n का वैल्यू 2 है
from n1 is equal to 2 to n2 is equal to 3 for hydrogen spectrum. For hydrogen spectrum, this is the question for us. So how we have to solve? 1 upon lambda is equal to r, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, that is 1.09 into 10 to the power 5. Okay, and then 1 upon n1 square मतलब 2 square minus n2 square मतलब 3 square. Okay, so what will happen? आप चाहो तो पूरी वैल्यू लगा सकते हो 109667, बट वही जो मल्टीप्लिकेशन नंबर प्रॉपर है. तो 1 upon lambda is equal to 109667, 1 by 4 minus 1 by 9. Okay, so that is 109667. This is the 36. Okay, 9 minus 4, so that is 109667 into 5 by 36, 1 upon lambda. But 1 upon lambda is the wave number. It is the wave number. ठीक, तो हम lambda निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 36 upon 5 into 109667 meters. Okay, so this is the way to calculate the wavelength of the particular radiation. अगर इसी रेडिएशन का हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता तो हम क्या करते? अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होता तो then mu is equal to c upon lambda. लैम्डा हमने ये फाइंड आउट कर लिया, c हमको पता ही है, 3 into 10 to the power 8. लैम्डा हमने कितना निकाला? 36 upon 5 into 109667. आप सॉल्व करते हैं, whatever the result will come, this is the answer to solve a particular frequency. Okay, so this type of the questions are very much important. और अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो रेडिएशन है, this radiation will lie in which series? ये जो रेडिएशन हुआ है जहाँ पे n1 का वैल्यू 2 है, n2 का वैल्यू 3 है, this radiation will lie in which series? So this radiation will lie, अगर n1 का वैल्यू 2 हो गया and if the n1 is equal to 2, this spectrum will lie under the Balmer series. ये बामर सीरीज में एग्जिस्ट करेगा और वो भी कौन से रीजन में? विजिबल रीजन. ओके, इट विल लाई अंडर द विजिबल रीजन. ये विजिबल रीजन में लाई. ओके, सो दीस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. प्लीज रिमेंबर. ओके, अब एक क्वेश्चन और. नाउ सपोज द क्वेश्चन विल कम calculate wavelength. Yes, calculate longest and shortest wavelength for hydrogen spectrum if it lies in visible region. अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में लाई किया, so then we have to find out the longest wavelength and the shortest wavelength. The question is very much important. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी हुआ है ना. You can also say the question also based on the competition classes. है ना, कहीं ना कहीं competition 5 को भी कवर कर. So how we have to find if the visible region, if the spectrum will form under the visible region, it means that this spectrum will come under which series? It will come under the Balmer series. If the spectrum will come under the Balmer series, what is the value of n1? 2. n1 का वैल्यू 2 हो गया. अब देखो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? E is equal to h nu. Means h into c upon lambda. It means that energy is inversely proportional to the wavelength. है ना? अब बहुत लॉजिकल एक चीज, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या फंस रही है, आपको प्रॉब्लम यहाँ पर दिया है कि सर 1 upon lambda is equal to r, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 हमें पता है, but only the problem what is the value of n2 we will keep over there. So for putting the value of the n2, what you will do? एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मैंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिया, लॉन्गेस्ट, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी मिनिमम? मतलब फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए
लैम्डा विल बी मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, देन एनर्जी विल बी मिनिमम। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेडिएशन होगा तो कितनी भी कम एनर्जी हो बट कम से कम एक एनर्जी लेवल तो ऊपर जाएगा ही रेडिएशन। तो अगर आपने n1 की वैल्यू पर इस केस के लिए अगर n1 आपने 2 माना सो दैट n2 विल बी 3 ओनली, क्योंकि एनर्जी इतनी कम है कि इससे ज्यादा ऊपर स्पेक्ट्रम जाएगा ही नहीं। जब आपने कम से कम एनर्जी मान ली, बट अगर स्पेक्ट्रम कब बनेगा, जब रेडिएशन होगा। रेडिएशन कब होगा, जब एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी होगा। एक्साइटेशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं लेवल में तो चेंजेस आएंगे। तो हम कितनी भी कम से कम एनर्जी दें बट कहीं ना कहीं एक एनर्जी लेवल तो ऊपर चढ़ ही जाएगा। सो वैल्यू ऑफ n2 विल बी द 3, देन यू कैन पुट ओवर हियर गेट द रिजल्ट। सेकंड थिंग, ये पहला केस हुआ, एंड द सेकंड थिंग इज दैट फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा वेवलेंथ कब आएगा, सो व्हाट वी कैन से दैट फॉर दिस टाइम लैम्डा विल बी मिनिमम, सो एट दैट टाइम एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो। और अगर एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो हमें क्या पता कितना दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी लेवल बन जाएगा। सो व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम n1 विल बी 2 बट n2 विल बी इंफिनिटी। n2 जो होगा वो उस टाइम पे इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ मच मैक्सिमम एनर्जी इट इज हैविंग। इतना ज्यादा एनर्जी होगा तो कितने लेवल को जंप करेगा, वी डोंट नो। सो व्हाट यू विल एज्यूम एट दैट टाइम n2 विल बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी। तो अब यहां पे क्या करोगे, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity, 1/infinity क्या होता है अनडिफाइंड टर्म, तो ये थोड़ा 0 हो जाएगा। यू कैन गेट द रिजल्ट ओवर हियर। ओके, so these type of the question you can also solve. Okay, so these are the certain questions here which you can solve on the basis of the this spectrum phenomena, Rydberg formula. ठीक है, अब ये मैंने पूछा होता कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो पहले आप लैम्डा फाइंड आउट कर लेते एंड आफ्टर फाइंडिंग द लैम्डा m is equal to c upon lambda, लैम्डा हमें पता चल जाता है, वेरी इजीली you can find the value of the this frequency of the wave. Okay, so that's why this is a very much important point. मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल को बताया एंड दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. व्हाई? बिकॉज आफ्टर दैट वी आर एबल टू फाइंड इट excitation, whenever the radiation will develop we are able to find out the frequency, wavelength. इसका मतलब क्या होगा कि फिर से वेवलेंथ आया, फिर से अगर आया तो इसका मतलब डुअल नेचर लेके चलो कि पार्टिकल तो वो है, पार्टिकल के साथ साथ वो वेव भी है, वो कितना भी दूर जा रहा है, रेडिएशन दिखा रहा है. ठीक, सो इन द टुमारो लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल. आप याद रखो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्लासिकल और मॉडर्न के बीच में ब्रिज का काम किया है. जिसने क्लासिकल को लेके चले, क्लासिकल में इंप्रूवमेंट बताया और फिर मॉडर्न की तरफ पहुंचाया. इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो प्लीज बी इन टच. टुमारो आई विल अगेन कम विद द लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस. टुडे इट वाज द कनेक्शन ऑफ द नेट कनेक्टिविटी. आई होप सो टुमारो इट विल रिजॉल्व एंड इफ अगेन इट विल नॉट रिजॉल्व अगेन आई विल अपलोड द वीडियो बेस्ड ऑन द टुमारो. ओके, थैंक यू डियर सो मच. ओके, गुड बाय.